So hello everyone, welcome to EduTab and welcome to Abhyas series. In today's computer class, we are going to cover the topic data processing. In first class, although हमने थोड़ा सा data processing discuss कर लिया है इसके basic, but yes, इस class में इसके concept से related कुछ important चीज़ें हम cover करेंगे. So let's begin our class. Now students, the very first question I have for you is which of the following best describes the term data processing? Now when we are talking about data processing, although I have already told you the definition, the basics, and this question is only a revision question, okay? So you will have to tell, is it converting process information into raw facts, or performing calculation without storing result, or transforming raw data into meaningful information, or is it collecting data from the output device only? So as in the first chapter or in the first class we have already covered that yes, data processing is basically transforming the raw data into the meaningful information. So your option C will be the correct answer. Moving on, the next question is, with reference to central processing unit CPU, consider the following statements. The ALU, arithmetic logical unit, perform arithmetic and logical operation. The control unit controls and coordinates the activities of computer system. The control unit is mainly responsible for permanent data storage. So you will have to tell which of the combination of the above statement is correct. Is it one only? Is it one and two only? Is it one and three only? Or is it one, two, three? That means all the statements are true. So here those of you who know that, see, to go from data to information, we need to process the data. Okay, we need to process the data. In processing a lot of things happen, and see, to collect the data, if I want to collect the data, what I will do, I will use the input device. I'll use the input device. To collect the information, I'll go for the information device, and to process the data I have CPU, that is central processing unit. Okay, so in central processing unit you have two part, ALU and CU. We will discuss these in detail. If you know the answer or if you have gotten the hint, you may attempt the question, otherwise don't worry, in this particular class we will discuss this in detail. So here when we are talking about the ALU, yes, by the name itself you can understand it can do arithmetic and logical operation. When we are talking about the CU, it controls and coordinate everything in our computer, be it memory, be it our different input and output device, be it our register, everything is controlled by CU. However, CU is not responsible for permanent storage of data. So here option B, that is only first and second statement are correct, the third statement is incorrect. Okay, don't worry, after a few questions all these concepts we will discuss, or because all these concepts can be discussed together, so we will club them out and we will discuss the whole process. Okay, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन डेटा प्रोसेसिंग. सो जब हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं, हेयर बेसिकली वी आर सेइंग कि कैसे हम डेटा से इंफॉर्मेशन में जा सकते हैं. ओके तो ये बेसिकली आपका डेटा को प्रोसेस करने का साइकिल होता है. सो हेयर वी हैव डिफरेंट स्टेप. तो आपने बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा. तो आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन टिल नाउ आपको पता होना चाहिए, जो भी डेटा है दैट इज कैप्चर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस. ओके, इनपुट डिवाइस, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनपुटिंग. और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, या फिर इसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं, दैट वी गेट थ्रू द आउटपुट डिवाइस. ओके, एंड इन बिटवीन क्या होती है, प्रोसेसिंग. तो इतने ही हिंट से, इवन इफ आपको आउटराइट ये कहीं पे क्लियरली ना बोला जाए कि इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट होता है, देन स्टोरेज होता है, देन ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ठीक है, इनपुट से वी नीड टू गो टू आउटपुट, एंड देन हमें इसके लिए हमें चाहिए होती है प्रोसेसिंग. ओके तो ये तो स्टेप देखो, तीन तो यहीं पे क्लियर हो जा रहे हैं. नाउ फाइनली, क्या हम रॉ जो हमारा नॉन यूजफुल डेटा है या जो नॉन यूजफुल फैक्ट है, क्या हम उनको स्टोर करेंगे? द आंसर इज नो. हम यूजफुल जो हमारे फैक्ट्स है दैट वी हैव गॉटन एज अ रिजल्ट, उनको हम स्टोर करके रखेंगे. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन बी. Okay, moving on, let's discuss the data processing now. So when we are talking about the data processing, it is basically the process where we take input, we process them, and then we get the output. So input is basically raw facts,
that we call data, and output is basically result that we call information. Okay, now input, for input we have various devices. We have keyboard, we have mouse, we have scanner, we have microphone. Keyboard is for टाइपिंग, दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ वर्ड यू हैव, आप कुछ भी प्रेस करना चाहते हैं, कुछ भी वर्ड टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे. माउस इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो पर्टिकुलरली सिलेक्शन के लिए आप माउस यूज़ करते हैं. स्कैनर के लिए, अगर आपके पास कोई फिजिकल पेपर है, फिजिकल कॉपी है, उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में चाहते हैं रिजल्ट में, तो उसके लिए भी यू विल यूज़ स्कैनर. एंड ऑडियो के लिए वी हैव द माइक्रोफोन्स. ऑल राइट, जो डेटा आपका होगा इट विल बी इन द बाइनरी फॉर्म लाइक दिस, एज यू कैन सी हियर. ये इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज. ये बनती है 10111110 करके, और हमारे कंप्यूटर को यही समझ में आती है. तो इनपुट डिवाइस बेसिकली आप जो भी फैक्ट्स देना चाहते हैं, ये आप हो, ठीक है. तो आपसे जो भी फैक्ट्स है उनको रिसीव करेगा, उनको कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, देन उसको फीड करेगा टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपके तीन पार्ट होते हैं, ALU, CU एंड रजिस्टर. इसमें से ALU एंड CU ये मेन आपकी वर्किंग यूनिट है, एंड रजिस्टर जो है ये आपकी स्टोरेज यूनिट है. ओके, तो ALU इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इस टाइप की चीज़ें. लॉजिक मीन्स एंड और नॉट, ये जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है. तो ये कंडीशनल फॉर्म ऑपरेशंस होते हैं. कंडीशनल, बहुत छोटा सा आपको लेमन सा एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे अगर मैंने कंडीशन बोल रखा है कि अगर सिचुएशन A1 एंड सिचुएशन 2 ये दोनों ही करेक्ट है, देन तो मेरा रिजल्ट भी होगा करेक्ट. अगर इनमें से एक भी इनकरेक्ट है तो मेरा रिजल्ट होगा इनकरेक्ट. अगर दोनों ही इनकरेक्ट है तो भी मेरा रिजल्ट होगा करेक्ट. ओके, तो मैं वैल्यू दूंगी, अगर मेरी वैल्यू एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव. अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है तो क्या आएगा, पॉजिटिव. तो ये क्या है, मैंने लॉजिक बता रखा अब तक कंप्यूटर को, मेरा कंप्यूटर उनको फॉलो, लॉजिक को फॉलो करते हुए मुझे रिजल्ट देगा. राइट, देन CU इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, आपके कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट लग रखे हैं उनकी वर्किंग इज कंट्रोल्ड बाय CU. चाहे वो आपका ALU हो, मेन वर्किंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, चाहे वो आपका रजिस्टर हो, चाहे वो आपकी प्राइमरी मेमोरी हो, सेकेंडरी मेमोरी हो, ऑल दोज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय CU. अब रजिस्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. सी, रजिस्टर को ऑल्दो बी कंसिडर इन द मेमोरी यूनिट, इट्स अ मेमोरी यूनिट, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ए मेमोरी. ओके, रजिस्टर किसी तरह की मेमोरी नहीं है. वाई? बिकॉज इट वर्क्स क्लोजली विद द ALU एंड CU. ये बेसिकली CPU का पार्ट है, क्योंकि जब हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एक्टिवली काम कर रही होगी तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहे होंगे वो भी उसे कहीं ना कहीं स्टोर करने हैं. तो उसको स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी बहुत स्लो है, तो उसको बहुत ही फास्ट मेमोरी चाहिए जो हमारी होती है रजिस्टर. ओके, देन आफ्टर CPU हैव डन इट्स वर्क, हमारे पास आ जाएगी इंफॉर्मेशन, दैट इज रिजल्ट. ओके, एंड देन जो हमारा मॉनिटर है, हमारा प्रिंटर है या फिर हमारा स्पीकर है, वो उस रिजल्ट को ट्रांसफर करेंगे इनटू द ह्यूमन और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज. तो जो भी रिजल्ट था वो मेरा बाइनरी में आ रखा है, ठीक है, एंड इसको कन्वर्ट करने का काम करेगा मॉनिटर या फिर प्रिंटर या फिर आपका स्पीकर. ठीक है, अब इसके अलावा मेमोरी यूनिट है वो क्लोजली काम करती रहती है टू स्टोर द डेटा ऑल्सो. एंड जिस टाइम पे प्रोसेसिंग हो रही है उस टाइम पे भी जो हमारी स्टोरेज यूनिट है वो बहुत ही क्लोजली काम करती है CPU की. इसमें प्राइमरी. Okay, option 2, that is calculation. Option 3, sorting.
ऑल दीज थ्री थिंग्स कैन बी परफॉर्म्ड ओवर द डेटा। आपने बहुत सारे नंबर एडिशन के लिए दे दिए हैं, कुछ लिखने के लिए दे दिया है, तो ये सब चीज़ें उन पे की जा सकती है। हाउएवर डुप्लीकेशन ऑफ हार्डवेयर, आपके जो हार्डवेयर है, आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है, ये सब चीज़ें डुप्लीकेट नहीं की जा सकती। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 1 2 3, ऑप्शन डी। ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन ऑपरेशन, इनके मतलब मैं आपको बता देती हूँ। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स वट एवर डेटा यू हैव फेड, आपने जो भी डेटा दे रखा है उसको ग्रुप करना। ओके, बेस्ड ऑन कि आप कैसे चाहते हैं, आप उनको नंबर के थ्रू, जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आप उनको कैसे डिवाइड करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन देयर बॉडी वेट, बेस्ड ऑन देयर हाइट, बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, किसी बेस्ड ऑन देयर जेंडर ऑल्सो। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। देन वी हैव कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बेसिकली मीन्स आप कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन अपने डेटा पे करते हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मीन्स अगर आप अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर टाइप में, कि आप 1 2 3 4 असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर A to Z ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना चाहते हो, फिक्स करना चाहते हो। देन वी हैव डुप्लीकेशन ऑफ हार्डवेयर। नाउ डुप्लीकेशन ऑफ हार्डवेयर डजंट हैपन। ओके, ये क्या होता है बेसिकली हियर मीन्स इफ वी हैव वन कीबोर्ड इट विल बिकम इनटू टू एंड दैट डजंट हैपन इन द डेटा प्रोसेसिंग। ऑलराइट, the next is with reference to EDP, that is electronic processing data, consider the following statement. What is the electronic data processing? देखो आपके डेटा प्रोसेसिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो अब हम कवर करेंगे। ओके, तो उनमें से एक है ADP। बहुत हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस वेरियस टाइप्स। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विल बी इन्वॉल्व। सो यू विल हैव टू टेल कि इनमें से स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सही है। Okay, so EDP uses computer for processing data automatically. EDP reduces the speed and accuracy of data handling. EDP widely used in banking and business organization. Here you will have to see, अगर हम डेटा को मैं प्रोसेस कर रही हूँ या आप प्रोसेस कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप कैलकुलेटर से भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स डेटा की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और डेटा में एरर का चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसीलिए हमारी इंडस्ट्रीज में EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन सब में ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की जाती है। सो बेस्ड ऑन दिस यू शुड बी एबल टू नो दैट ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो हमारा ऑपरेशन 2 है, सॉरी ऑप्शन 2 है, दैट इज ऑपोजिट एक्चुअली। ओके, स्पीड गेट इम्प्रूव एंड एक्यूरेसी ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव। ओके, then consider the following statement regarding batch processing and real time processing. Batch processing handle data in group or batches. Time processing involves real time processing provides immediate result after data input. Online railway reservation system generally uses batch processing. So you will have to tell which of the following statement, which of the statement is or are correct. Okay, so here when we are talking about the batch processing and real time processing, you will have to understand batch में क्या होता है, you have a lot of data to process. आपके पास बहुत सारा डेटा है प्रोसेस करने के लिए, आपने क्या किया, उसके बैचेस बना दिए। जैसे लेट से आपको पूरे साल का स्कूल का रिजल्ट निकालना है, तो आपने हर बच्चे का हर साल का रिजल्ट निकालने की बजाय आपने क्या किया, उसको सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया, 2 सेमेस्टर में, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट निकाल लिया, 4 टाइम पे आपने डिवाइड कर लिया कि आपने कहा कि ओके फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट 6 मंथ का देखेंगे या सेकंड 6 मंथ का देखेंगे, या फिर आपने क्लास वाइज डेटा को बैच कर दिया कि बैच जितना भी क्लास 1 था वो बैच 1 में आ गया, क्लास 2 बैच 2 में आ गई, क्लास 3 बैच 3 में आ गई, इस तरीके से। ओके, नाउ ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जनरली यूज बैच प्रोसेसिंग। क्या जब आप टिकट स्टोर करने जाते हो या रिजर्व करने जाते हो उस टाइम पे आपका ऐसा होता है कि वेट करती रहती है इंडियन रेलवेज की कब 10 लोग टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर 10 लोगों को एक साथ पूरा काउच देती है, ऐसा नहीं होता। ओके, सो हेयर यू शुड नो, जब बैच प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें डेटा बैच में बनता है, तो ये ऑनलाइन रेलवेज में फिजिबल नहीं है। दूसरा, रियल टाइम प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, द रिजल्ट इज प्रोवाइडेड इमीडिएटली, जैसे ही आपने डेटा एंटर किया उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाता है। ओके, सो दिस इज रियलिस्टिकली
ये ज़्यादा बेटर है अगर हम रेलवेज में यूज़ करें. सो हियर आपकी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है? Only 1 and 2. So option B will be the correct answer. Moving on. Which of the following type of processing is most suitable for ATM transaction and airline reservation system? Now this you should be able to know because we have discussed till now. तो आपको ये खुद आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. जब हम ATM में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम क्या ये चाहते हैं कि नहीं 5-6 दिन बाद हमें पता चले कि हमारे एटीएम से कितने पैसे विड्रॉ हो रखे हैं, कितने पैसे उसमें सबमिट हो रखे हैं? द आंसर इज नो. हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी मैंने एटीएम यूज़ किया उतनी जल्दी मुझे बैंक से मैसेज आ जाए कि ठीक है जो डेटा है प्रोसेस हो गया है, इतने पैसे डेबिट या क्रेडिट हो गए हैं. ओके. सिमिलरली एयरलाइन रिजर्वेशन में मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी मैंने सीट के लिए अप्लाई किया है मेरी सीट कंफर्म हो जाए. ओके. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी रियल टाइम प्रोसेसिंग बिकॉज रियल टाइम प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है. Okay, moving on. Which of the following are advantage of computerized data processing? Now computerized data processing when we say, देखो यहाँ पे आपको outrightly नहीं बोला जाएगा कि we are talking about EDP. ओके, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की हम बात करें, ऐसा आपसे बोला नहीं जाएगा. यू विल हैव टू रेफर इट आउट ऑन योर ओन. कंप्यूटराइज का मतलब है वी आर यूजिंग कंप्यूटर, सो इट विल बी एनोनिमस, इट विल बी सिनोनिमस विद द ईडीपी. ओके. सो हियर ईडीपी या फिर डेटा प्रोसेसिंग में आपने बताना है एडवांटेजेस क्या क्या हैं. हाई स्पीड प्रोसेसिंग, improve accuracy, large storage capacity and increased probability of human error. Now this you should be able to answer on your own. अब तो इतना हमने डिस्कस कर लिया, आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 2 3. द स्पीड गेट इम्प्रूव, एक्यूरेसी गेट्स इम्प्रूव एंड द स्टोरेज इज good. However it doesn't increase the probability of human error. Why? Because हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं. ह्यूमन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इनपुट देने के लिए है, हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं. ओके. Next question. With reference to method of data processing, consider the following statement. Manual data processing EDP is comparatively slower than the electronic data processing. Mechanical data processing involves use of devices such as calculator and typewriter. Not important for your exam, but yes, ये definition है basically. EDP is completely eliminate the need of instruction and program. So you will have to tell which of the given statement is correct. So you should know EDP में खुद data प्रकट नहीं होता है. यू विल हैव टू फेड द डेटा. आप इनपुट डिवाइस यूज करेंगे एंड डेटा को एंटर करेंगे. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2. मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग मीन्स आप खुद डेटा मैनुअल में नेम में मैन इज देयर, दैट मीन्स अ मैन और ह्यूमंस आर एंटरिंग द डेटा ऑन देयर और प्रोसेसिंग द डेटा ऑन देयर ओन. ओके. जैसे आप सब्जी की दुकान में जाके सब्जी का हिसाब करते हो तो उस टाइम आप कैलकुलेटर नहीं खोलते हो, रादर यू डू द मेंटल मैथ्स. सो व्हाट यू आर डूइंग मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग. On the other hand, if you open the calculator, it will become the mechanical data processing because you are taking the help of any machine, not necessarily computer but machine. It can be anything. Okay. And when we come to EDP, now you are taking the help of computer where you will give the instruction, you will give the program and computer will process it. Okay. Last question or last MCQ of this particular session is, consider the following statement regarding multiprocessing in computer. Multiprocessing refers to the use of two or more processor within a computer system. The multiprocessing improve overall processing speed and efficiency of the garden. In multiprocessing system, only one processor can execute the task at a time. So here you should know multiprocessing. That means more than one processes are going on. मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज़्यादा प्रोसेस करने के लिए यू नीड मोर देन वन प्रोसेसर, और एक ही अगर प्रोसेसर है तो उसमें बहुत सारे कोर हो. ठीक है. तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है जब हम एक से ज़्यादा प्रोसेस कंप्यूटर में करते हैं. स्टेटमेंट 2 सेज इंप्रूव ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड. यस. देखो अगर आपके पास दो टास्क हैं एंड आपने वहाँ पे वन एंड उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन आई गो फॉर टास्क 2. अगर आप इस अप्रोच को लेके जाते हैं तो लेट्स से दिस इज टेकिंग 10 मिनट्स, देन दिस विल टेक 10 मिनट एंड इट विल टेक 20 मिनट्स. ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास दो प्रोसेसर है तो ये प्रोसेसर इस पे काम करेगा, ये प्रोसेसर इस पे काम करेगा, तो ओवरऑल द टाइम टेकन विल बी शॉर्टर. ओके. सो दैट इज वाई जो प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसिंग में वो हमारी प्रोसेस को फास्ट बना देता है. ओके. क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं. सो हेयर यू शुड नो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 2 ओनली. Okay, so students, with this we have covered all 10 MCQs. Please do write your score, how much you have scored in this session. Okay. Now students, if you are preparing for UPSC, EPFO, APFC,
एंड कोर्स में आपको समझ में नहीं आ रहा कि वेदर आई शुड गो फॉर द एडुटैप कोर्स और नॉट, सो उसके लिए वी हैव एन एक्सेलेंट सोल्यूशन. वी हैव लॉन्च दिस यूपीएससी ईपीएफओ एंड ईओएओ master course for and with 2 days demo. Okay, the course you will have to press buy now and you can pay nominal fees of 1 rupee and you can open it. Okay, here you will get the concept classes. आपको हर कंपोनेंट की कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी जिससे आपको पता चल जाए कि इस प्रोसेस में आपकी टीचिंग कैसे होने वाली है. यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट नोट्स कि कॉन्सेप्ट नोट्स हम किस तरीके से बनाते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मेंशन होती हैं. देन करंट अफेयर मैगजीन, दैट यू विल ऑल्सो गेट टू कवर करंट अफेयर. बिसाइड दिस सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टू नो एंड अंडरस्टैंड दिस एग्जाम बेटर. चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं टू टेस्ट योर सेल्फ वेदर वट एवर यू हैव स्टडीड आपको सच में समझ में आया है कि नहीं आ रखा है. एंड देन आपके करंट अफेयर के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं क्योंकि करंट अफेयर हम ज़्यादा जल्दी भूलते हैं. ओके, so with this we have covered this class, so thank you so much for being here. All the best, prepare well for your exam.